Okay. A latest question on consolidation. यहाँ पे क्या है? Prepare the consolidated statement of financial position of the Dobry Group as at 31st of December 2006. ठीक है. Now, at the date of acquisition, the fair value of Kroll Company's net assets was equal to their carrying amount. Okay. At the date of acquisition, the fair value of Hens's company's net assets was equal to their carrying amount, with the exception of some plant whose fair value was 24,000 greater than the carrying amount. At this date, the plant had a remaining useful life of 4 years. Hens कंपनी में कहाँ पे एडजस्टमेंट है? हेंस कंपनी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देयर इज एन एडजस्टमेंट. ठीक है, हियर. Then, at the end of 2006, the goodwill impairment review revealed a loss of 8,000 in relation to the business combination with Kroll. The goodwill in Hens was unimpaired. ठीक है. Kroll का goodwill is impaired. Hens का goodwill is not impaired. During November 2006, Kroll Company sold goods to Dobry Company for 18,000 at a markup on cost of 20%. Half of these goods were still sold by Dobry Company at 31st of March and the balance payable was still outstanding. So there is an adjustment in current assets. ठीक है. Then Dobry Company measures goodwill and NCI using fair value method for Kroll and proportionate method for Hens. The fair value of NCI in Kroll at the date of acquisition was 39,000. Now there are two subsidiaries in this question, by the way. है ना? अब मतलब आई वॉज रेफरिंग टू सम अदर क्वेश्चन व्हेन आई सेड एसोसिएट. यहाँ पे दो सब्सिडियरी है. ठीक है. Dobry Company purchased 80% of the shareholding in Kroll for cash 5 years ago when Kroll's retained earnings were 30,000 and the balance on its revaluation surplus was 15,000. Hence, company had retained earnings of 16,000 when Dobry Company acquired its 75% holding for cash of 1 lakh on 1st of Jan 2006 with a further cash payment of 87,200 deferred until 1st of Jan 2007. No accounting entries were made in respect of the deferred cash consideration. Dobry Company has a cost of capital of 9%. First of all, whenever we prepare consolidated financial statements, the first working note that you should prepare is that of group structure. ठीक है. Working notes always. Working note one is group structure. Working note two is fair value of net assets of subsidiary. Working note three, Calculation of goodwill. goodwill. Working note four, Calculation of non-controlling interest. या फिर consolidated retained earnings. ठीक है. एंड वर्किंग नोट 5 क्या होगा? Non-controlling interest. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ लेट्स डू ग्रुप स्ट्रक्चर फर्स्ट. क्रोल कंपनी फॉर कैश 5 years ago. सो मेरा कंपनी है डॉबरी कंपनी. ये है मेरा क्रोल कंपनी. व्हाट इज द परसेंटेज होल्डिंग? एक सेकंड ना, एक सेकंड रुक जाओ. द शीट इज अ लिटिल मिसअलाइंड. हाउ मच इज द परसेंटेज होल्डिंग? 80%. करेक्ट. How much is the holding? 80%. This is my holding company. This is my subsidiary company. ठीक है. It was acquired 5 years ago when retained earnings were 30,000 and balance on the revaluation surplus was 15,000. ठीक है. So here I have to start making my uh, net asset calculation. Kroll company.
particulars, acquisition date, बैलेंस शीट डेट। ठीक है। What all is included here? You include शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम है क्या, देख लो इस क्वेश्चन में। नो, देर इज नो शेयर प्रीमियम। यू विल हैव revaluation surplus. You will also have retained earnings। ठीक है। acquisition date and balance sheet date, दोनों डेज का you will need the data, right? Same calculation will have to be done for the other company also। What is the other company? उसका नाम है हेंज कंपनी। ठीक है। दिस इज हेंज कंपनी। कितना है परसेंटेज शेयर होल्डिंग इन हेंज कंपनी? 75%। ठीक है। अब लेट्स डू द नेट असेट वाला जो आपका वर्किंग नोट है। वी हैव टू मेक इट ट्वाइस दैट वे, है ना। एक बार क्रोल कंपनी, एक बार आएगा आपका हेंस कंपनी। अब आई एम जस्ट मेकिंग द फॉर्मेट, जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे आई विल स्टार्ट पोस्टिंग। Dorby Company purchased 80% shareholding in Kroll Company for cash 5 years ago, when Kroll Company's retained earnings were 30,000, balance on revaluation surplus was 50,000। ठीक है। retained earnings 30,000, balance on revaluation surplus 15,000। ठीक है। then Hence, company had retained earnings of 16,000 when Dorby Company acquired 75% of its holding for cash of 1 lakh on 1st of Jan 2006, with a further cash payment of 87,200 deferred until 1st of Jan 2007। ठीक है। On this date, what was the retained earnings? Retained earnings was 16,000 of Hence Company। ठीक है। Now, what is the fair value of consideration paid by Dobry Company to acquire Hence Company? कितना है? 87 to 1 lakh is immediate cash payment. 87,200 is deferred cash payment, right? So if you have a deferred consideration, how do you tackle that? If there is a deferred consideration, you calculate the present value of the deferred consideration, correct? तो कैसे करेंगे हम? यू विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? 9%। ठीक है। नाउ आई विल हैव अनदर वर्किंग नोट हियर। इसी में नहीं तो मैं आपको करके देता हूं। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय डॉबरी कंपनी फॉर हेंस कंपनी। ठीक है। इमीडिएट कैश पेमेंट 1 लाख। ठीक है। एंड deferred cash consideration present value 87,200 into 1 upon 1.09, करेक्ट। ऐसे ही होगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। सो 87,200 अपॉन 1.09 कितना हो जाएगा? 80,000। सो 1,80,000 इज द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है। ये हो गया आपका। ओके। नाउ वी एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन टिल दिस पॉइंट। अब आगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डॉबरी कंपनी, क्रोल कंपनी, हेंस कंपनी। ठीक है। Fair value of Kroll company's net assets was equal to the carrying amount. At the date of acquisition, fair value of Hens company's net assets was equal to their carrying amount, with the exception of some plant whose fair value was 24,000 greater than its carrying amount.
ठीक है, सो देयर इज अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नॉन करंट असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। करेक्ट। सो नॉन करंट असेट का वैल्यू विल इंक्रीज बाय 24,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस का वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 24,000। ठीक है, सो यहां पे आइए, revaluation surplus increases by 24,000 in hence company, and property plant and equipment में also it will have to increase by 24,000। ठीक है, so 2,40,000 प्लस क्रोल कंपनी का कितना, क्रोल कंपनी का 1,30,000 एंड हेंस कंपनी का कितना, 1,20,000, बट देर इज रिवैल्यूएशन ऑफ 24,000। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन सो फार इज गिवन टू यू। आगे क्या लिखा, एट दिस रेट द प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years, सो दिस रिवैल्यूएशन ऑफ 24,000, दिस अमाउंट विल हैव टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 4 years। कैसे करेंगे आप, हाउ विल यू डेप्रिशिएट, यहाँ पे यू विल राइट डाउन additional depreciation due to revaluation. This will be how much? 24,000 upon 4. That is 6,000 will be adjusted as depreciation for that fair value part. And यहाँ पे also you will have to consider that depreciation minus additional depreciation 6,000। ठीक है, सो डबल इफेक्ट हैज बीन गिवन, वन इफेक्ट हियर इन, तो मतलब ये नेट असेट्स में जाएगा, सेकंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट में असेट वैल्यू। ठीक है, वहां पे एडजस्ट कर लिया आपने, विच मीन्स व्हाट ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन, दिस इज डेल्ट विथ एंड दिस इज डेल्ट विथ। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट इन क्रोल कंपनी इज 1,80,000, इन्वेस्टमेंट इन हेंस कंपनी इज 1 लाख। ठीक है, अब नाउ लेट्स कम टू द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अभी अपना नेट असेट का वर्किंग नोट, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दैट, वो अभी तक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। वन बाय वन वी हैव टू स्टार्ट एडजस्ट और स्टार्ट रिकॉर्डिंग द आइटम्स एट लीस्ट। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ इज गुडविल गोइंग टू बी कैलकुलेटेड? ठीक है, सो पर्टिकुलर्स क्रोल hence what will you get here? You will get fair value of consideration paid, there will be चलो fair value of consideration paid, add NCI, यहाँ पे आएगा fair value of NCI in Kroll company, और यहाँ पे आएगा add proportionate value of NCI। ठीक है, what will you subtract from this? You will subtract fair value of net asset of subsidiary। Correct। अब in case of Kroll company, what is the fair value of consideration paid? 1,80,000। ठीक है, in case of Hens company also 1,80,000। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू, अंडरस्टैंड हाउ इज एनसीआई कैलकुलेटेड। यहाँ पे क्या लिखा है, Dobby Company measures goodwill and NCI using fair value for Kroll and proportionate method for Hens. The fair value of NCI of Kroll at date of acquisition was 39%। 39% नहीं, 39,000। अब हेंस का कैसे निकलेगा, हेंस का फेयर वैल्यू अगर आपको निकालना, सॉरी हेंस का एनसीआई निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ द कंपनी एट डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, वो जो भी आपका वैल्यू होगा डेट ऑफ एक्विजिशन का, दैट इंटू 25% शुड गिव यू द एनसीआई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम है, लुक एट हेंस कंपनी, वी आर येट टू फिनिश द कैलकुलेशन। हेंस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, हेंस कंपनी का शेयर कैपिटल इज 1 लाख, क्रोल कंपनी का शेयर कैपिटल इज ऑल्सो 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख 1 लाख लिख दो। व्हाट एल्स, ये भी हो गया, ये पोस्ट हो गया आपका। ठीक है, ये कर दिया आपने।
जो पोस्ट करो उस पे टिक लगा दो, सो दैट यू नो इन द एग्जाम यू हैव द हाइलाइटर टूल, सो यू कैन हाईलाइट इट दैट वे। ठीक है, ये हो गया 180 चला गया, हेंस चला गया, करंट असेट जाने का है। शेयर कैपिटल कर रहे तो ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को यहां पे भी लिख ही देते हैं ना बैलेंस शीट में। पाई लाख। ठीक है, ये भी पोस्ट हो गया हमारा। देन रिवाइल सरप्लस 30,000 ऑन बैलेंस शीट डेट, रिटेन्ड अर्निंग्स 80,000 ऑन बैलेंस शीट डेट। किसका? क्रोल कंपनी का। ठीक है, इधर आइए, रिटेन्ड अर्निंग्स 80,000, सॉरी 80,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस 30,000। करेक्ट, ये डाल दिया आपने। हेंस कंपनी 32,000। जस्ट वन मोमेंट गाइस। ओके, ठीक है, ये हो गया। हेंस कंपनी, क्रोल कंपनी, वी हैव पोस्टेड द रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, कहाँ पे थे? वी वर लुकिंग एट 32,000, ये भी पोस्ट हो गया। होल्डिंग कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ जाएगा? इट विल गो टू द कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स वाला वर्किंग नोट। ठीक है, सो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ पेरेंट ऑन बैलेंस शीट डेट 2,38,000, ये भी कर दिया हमने। करंट असेट को भी लिख देते हैं, एडजस्टमेंट जो है वो बाद में कर लेंगे। 526, 170, 80, 5,26,000, 80,000। ठीक है, इसको टिक लगा दो। एडजस्टमेंट है, वील सी व्हाट द एडजस्टमेंट इज। दिस इज ऑल्सो डन। करंट लाइबिलिटी 3,08,90,68, 90 एंड 68। कुछ होगा तो देख लेंगे बाद में, एडजस्टमेंट। ठीक है, ऑल आइटम्स हैव बीन पोस्टेड। अभी एक एक करके एडजस्टमेंट्स को जो भी है क्लोज करना है। अच्छा, एक चीज अपना अभी भी बाकी है। व्हाट इज दैट? देर इज एन एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, एनसीआई ऑफ हेंस कंपनी वी डोंट हैव, वी हैव टू टेक द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ एनसीआई। ठीक है, फॉर दैट वील नीड नेट असेट्स ऑफ हेंस कंपनी ऑन द acquisition date, right? So net assets, सॉरी 1 लाख भी आना चाहिए इधर। ठीक है, सो नेट असेट्स इज दिस, एनसीआई एज अ
percentage of net assets will be this into 25% because holding company का share, if holding company का share is 75%, NCI का share is 25%। यहाँ पे लगे तो लिख देते हैं 25%। यहाँ पे ऐड करो 25,000। ठीक है। नाउ व्हाट ऑल डू यू नीड? यू नीड फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडियरी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। Let's see if there are any other adjustments which affect the net asset ka calculation for Kroll company, right? Uh, During November 2006, Kroll sold goods to Dorby for 18,000 at a markup on cost of capital at a markup on cost of 20%. Half of these goods were still held by Dobry and the balance payable was still outstanding. Were sold for 18,000 at a markup on cost of 20%. ठीक है। And who has sold to whom? Holding has sold to subsidiary or subsidiary has sold to holding? Who sold to whom? बताइए। So subsidiary Sub- sold to Adobe. Subsidiary sold to holding. Correct. So, working note 6, unrealized profit. Particulars. Then, what do you have? Particulars के बाद? Sorry. You need to calculate unrealized profit. ठीक है। Assumed actual cost, add markup, selling price। 20% मार्कअप है। यहाँ पे कितना है? सेलिंग प्राइस 18,000 है। तो मार्कअप मतलब प्रॉफिट कितना आएगा? 3,000। राइट। 3,000 इज 18,000 इंटू 20/120। And how much of the stock is still unsold? Half of the goods are still unsold, half of the goods are held. So unrealized profit 3,000 into 50%, कितना हो जाएगा? 1,500, है ना। एंड होल्डिंग सोल्ड टू सब्सिडियरी नहीं, सब्सिडियरी सोल्ड टू होल्डिंग। सो रिड्यूस फ्रॉम व्हाट? रिड्यूस फ्रॉम टोटल क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी विच इज 1,500 इंटू 75%, कितना है? 1%. You have to reduce this from consolidated retained earnings and अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ एनसीआई, है ना। आपको याद होगा तो ऑरेंज और येलो में मैंने वो नोट को मार्क भी करके दिया है, राइट। यू हैव टू रिड्यूस दिस फ्रॉम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। ये कितना होगा? 1,125. 1,125। ये कितना होगा? 375. 375। ठीक है। सो रिड्यूस इट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक मतलब करंट असेट। करंट असेट में यहां पे माइनस करो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है। एंड और कहां से कम करना है? फ्रॉम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स लेस शेयर ऑफ होल्डिंग इन
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट -1500 इंटू 75%। ठीक है। एंड सेम थिंग एनसीआई में से भी माइनस करना पड़ेगा, शेयर ऑफ एनसीआई इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है। दिस विल बी 375। ठीक है। बट योर कैलकुलेशन इज नॉट येट कंप्लीट। हाँ, आपको, अच्छा, ये हु सोल्ड टू हुम, क्रोल की हैंड्स, क्रोल सोल्ड, बिकॉज एनसीआई में भी दो कॉलम्स बनेंगे ना, एनसीआई विथ रिस्पेक्ट टू क्रोल एंड एनसीआई विथ रिस्पेक्ट टू हैंड्स। ठीक है। यहां पे हम लेंगे वैल्यू ऑफ एनसीआई। क्रोल का है 39,000, हेंस का है 25,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नाउ दिस एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन एंड बैलेंस पेएबल वाज स्टिल आउटस्टैंडिंग, इट वाज सोल्ड फॉर 18,000, तो इंटरकंपनी डेटर क्रेडिटर होगा ना, अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, क्रोल सोल्ड टू डॉबरी फॉर 18,000, तो टोटल डेटर्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटी दोनों में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना, 18,000। इंटरकंपनी 18,000। 68,000 माइनस 18,000 कितना हो गया, 4,48,000। ठीक है, यहां से भी उड़ा दिया, वहां से भी उड़ा दिया, दोनों इसमें से भी रिमूव्ड दैट अमाउंट। और भी कुछ होगा तो देखते हैं फिर, इफ देयर इज सम अदर एडजस्टमेंट, यू नो व्हाट, लेट्स नॉट शो इट इन द आउटर कॉलम येट, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और क्या करना है अभी? आई थिंक वी हैव टैकल्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स दैट हैड टू बी टैकल्ड, एक एक करके। There is an impairment loss of 8,000 in relation to business combination of Kroll। ठीक है, क्रोल का गुडविल निकालेंगे, उसको फिर इम्पेयर करेंगे। ठीक है। ओके, टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पे, यू हैव द नेट असेट वैल्यू, आपका गुडविल का जो कैलकुलेशन है उसमें यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट द नेट असेट वैल्यू ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है। सो यहां पे लेते हैं, 'We'll have to see और what other items are there। अच्छा, 1 लाख बाकी है। ठीक है। सो 145 एंड 140 इधर सब्ट्रैक्ट करना है, 1,45,000 इधर सब्ट्रैक्ट करना है, 1,40,000। ठीक है। अब अपना गुडविल निकलेगा, गुडविल ऑन अक्विजिशन रहेगा वो। ठीक है, दिस इज गुडविल ऑन 8,000। ठीक है, 65,000, 65 नहीं, कितना आएगा, ये 25,000 नहीं है, सॉरी, दिस इज सपोज टू बी 35,000। ठीक है।
1,40,000 इंटू 25% इज 25,000। ठीक है। आपका गुडविल आफ्टर इम्पेयरमेंट हो जाएगा 8,000। 8,000 इम्पेयरमेंट के बाद इट विल बी 66। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। अब दिस इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस विल गेट एडजस्टेड इन सब्सिडियरी ऑल्सो, विल गो टू होल्डिंग कंपनी ऑल्सो, राइट? सो बिकॉज दिस इज फुल गुडविल मेथड ना, यहाँ पे फुल गुडविल मेथड यूज हो रहा है, विच इज वाई सिंस full goodwill method is used, we should split 8,000। कैसे स्प्लिट करेंगे? 8,000 इंटू 75% विच इज 6,000, रिड्यूस फ्रॉम consolidated retained earnings, and 8,000 इंटू, सॉरी नॉट, यहाँ पे 75% नहीं है, यहाँ पे 80 and 20% है, माई मिस्टेक। हाउ मच विल दैट बी? 1,600। इसको रिड्यूस फ्रॉम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है। यहां पे शेयर ऑफ होल्डिंग इन गुडविल इम्पेयरमेंट कितना है? 6,400। और शेयर ऑफ एनसीआई इन गुडविल इम्पेयरमेंट 1,600 हो जाएगा। ठीक है। सो ये भी देख लिया हमने। फेयर इनफ। नाउ अब नेट असेट वाला वर्किंग नोट भी तो क्लोज करना है। यहां पे व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज हाउ मच? बताइए। 65,000. एंड हाँ 65,000। ठीक है। दैट इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स ऑल्सो, हाँ बाय द वे। Yes, sir. रीवैल्यूएशन हुआ है ना, उसका क्या इम्पैक्ट करेंगे बताइए। So नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में 20% लगाएंगे 65 पर, और रिटेन्ड अर्निंग पे 80%. ओके। सो कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में कितना जाएगा? दिस इंटू 80%, करेक्ट? एंड Yes, पक्का कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा कि कहीं और जाएगा? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में. ओके। या फिर रिवाइल सरप्लस में जाना चाहिए? ये देखो, ये जो 15,000 का डिफरेंस है, सी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज नॉट 65,000 ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज 50,000, करेक्ट? दैट इज पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन सरप्लस, है ना? अब इसमें शेयर ऑफ होल्डिंग एंड शेयर ऑफ एनसीआई 80%, शेयर ऑफ एनसीआई 20%, दिस इंटू 80%, this into 20%, and there is post acquisition revaluation surplus, है ना? पोस्ट acquisition revaluation surplus, हाउ मच इज दैट? 15,000। उसमें भी शेयर ऑफ होल्डिंग होगा एंड शेयर ऑफ एनसीआई होगा, राइट? है ना? 15,000 इंटू वॉट एवर दैट अमाउंट इज, दिस इंटू 80%, दिस इंटू 20%। अब यहां पे इन योर कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स एड शेयर ऑफ होल्डिंग इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्रोल, शेयर ऑफ होल्डिंग इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हेंस, क्रोल कितना है? 40,000।
राइट। इधर 40,000 ऐड कर दो। एनसीआई का शेयर कहाँ आएगा? यहां पे आएगा, शेयर ऑफ एनसीआई इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। यहां 10,000 आएगा। ठीक है। एंड यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस 40,000 एंड दिस 10,000। ठीक है। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। चेक करो होल्डिंग कंपनी का अपना कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस है क्या, नहीं, बट देन आपको यहां पे लिखना पड़ेगा revaluation surplus 12,000। एनसीआई का शेयर विल गो टू एनसीआई। एड शेयर ऑफ एनसीआई इन रीवैल्यूएशन, कितना? 3,000। ठीक है। अब ये वाला क्लोज कर दिया। इसका देखो, इसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। इसका कितना होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? 32 माइनस 16। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इज 75%, शेयर ऑफ एनसीआई इज 25%। दिस इंटू 75%, दिस इंटू 25%। एनसीआई में कितना ऐड करेंगे? एनसीआई में 4,000 ऐड करेंगे, राइट। इसका कितना ऐड करेंगे? 12,000 ऐड करेंगे। ठीक है। सो यू आर नाउ क्लोजिंग ईच ऑफ द वर्किंग नोट्स वन बाय वन। ठीक है। अब गुडविल हो गया, गुडविल का इम्पेयरमेंट हो गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था वो हैंडल हो गया। ठीक है। ऑल दीज कैलकुलेशंस सीम टू बी कंप्लीट नाउ। ओके। अब यही एनसीआई देखना है। अरे मैंने यहाँ पे वो लिखा था ना, कहाँ चला गया? शेयर ऑफ एनसीआई इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एड शेयर ऑफ एनसीआई इन रिवैल्यूएशन, कितना था? हाँ, 3,000। देखो यहाँ पे लिख दिया गलती से, 3,000 शुड कम हियर। ठीक है। अब एक एक करके लेट्स ट्राई टू क्लोज द इंडिविजुअल वर्किंग नोट्स। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। कितना है? सम। वील हैव टू जस्ट इवेल्युएट कि यार कुछ छूटा तो नहीं है। वी हैव नॉट लेफ्ट आउट ऑन एनी एडजस्टमेंट, वील हैव टू चेक दैट। एक एडजस्टमेंट बचा है, वील गेट टू दैट इन अ मिनट। ठीक है। आगे क्या करेंगे? एनसीआई। हाँ, ओके। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 300 नहीं आएगा? ये 300 आएगा। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या कैलकुलेशन में? सर 20%, आपने 25% कर दिया नीचे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। दिस इज 80, सो दिस इज 1,200, माई मिस्टेक। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। दिस इज 300, सो यहाँ पे -300, यहाँ पे -1,200। ठीक है। uh, ये हो गया। अभी क्या बाकी है? अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑल्सो कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट बाकी है, एक बार चेक करो। इज द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट करेक्ट की गड़बड़ है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में? ओ यस, Excuse me, sir. दिस इज इनकरेक्ट। आई शुड हैव एडजस्टेड दिस 6,000 ऑल्सो, है ना?
ये 6,000 एडजस्ट करना चाहिए था। द डेप्रीसिएशन दैट अकर्ड बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, वो दैट वाज अगेन माय मिस्टेक। यहाँ पे 7,500 आ गया, यहाँ पे 2,500 आ जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट 6,000। वो डेप्रीसिएशन कब हुआ? दैट डेप्रीसिएशन ऑल्सो हैपेंड आफ्टर द एक्विजिशन डेट, सो नेचुरली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, आर यू विथ मी? यस सर। Yes, sir. हाँ। और That एक sharing चीज, also there. आई बेग This योर is पार्डन। so that sharing and that apportionment is also there also to 75%, 25%, sir. That वेयर? also should be a little more above. Just now depreciation, huh? Shareholding here 75% post acquisition. हियर, Huh. बट इट्स 75-25 ना? It is 80-20, no? No, hence company is 75-25. 80-20 is here. I have done that. Oh, sorry, sir. This is correct. I missed out on the depreciation का entry. That was the problem. अच्छा, they have specifically mentioned कि deferred cash consideration they have not recorded, right? So, what will be the entry? Investment in hence company account debit to deferred consideration. 80,000 का deferred consideration will be recorded in the balance sheet, है ना? 80,000 का deferred consideration will be recorded in the balance sheet. कैसे होगा entry? Working note 6, deferred consideration. Accounting entry for deferred consideration on, किस डेट को होगा deferred consideration? On 1st of Jan 2006, right? So on 1st of Jan 2006 क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा by investment in Hens Limited account debit to deferred consideration account credit। कितना? 80,000। एंड सो उसके बाद एंट्री ऑन 31st of December 2006, इस डेट को भी एंट्री होगा बाय फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन। कितना? दिस इंटू 9%। सो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में आई हैव टू रिकॉर्ड फाइनेंस चार्जेस ऑफ 7,200। ठीक है, सो लेस फाइनेंस चार्जेस deferred consideration 7,200, and in the balance sheet under current liabilities you will also have to add deferred consideration 87,200। कैसे आएगा 87,200? ओरिजिनल एंट्री 80,000 प्लस ये एडिशनल जो फाइनेंस चार्जेस हुआ उससे जो अमाउंट आया वो हो जाएगा 7,200। ठीक है, सो how much will it be? 87,200 will be the amount of deferred consideration. ठीक है, now what next? I think now we can say that all adjustments have been sufficiently dealt with. अब एक एक करके let's start closing the individual line items also. ये कितना हो जाएगा? 2,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 24,000 माइनस 6,000। ठीक है, गुडविल क्रोल, क्रोल का कितना है गुडविल? 66 और इसका 75। क्रोल का 66,000 और हेंस का 75,000। ठीक है, दिस इज योर टोटल गुडविल।
1,41,000। ठीक है। करंट असेट्स 5,26,000 प्लस 1,70,000 प्लस 80,000 माइनस 1,500 माइनस 18,000, 756,500। ये क्या है मेरा? दिस इज माय करंट असेट्स। यहाँ पे बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे, असेट साइड। और कुछ है नहीं असेट साइड में। ठीक है। अब लेट्स लुक एट लाइबिलिटीज। ठीक है। रिवाइल सरप्लस आ गया। उसके बाद आएगा आपका कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। कितना है कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स? 270,700। ठीक है। अगेन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्रोल प्लस हेंस। हेंस का कितना है? एनसीआई 37,500। 87,600। ठीक है। ये हो गया। एंड लास्ट थिंग इज आर करंट लाइबिलिटी। 3,08,000 प्लस 90,000 प्लस 68,000 माइनस 18,000 प्लस 87,200, 535,200। ठीक है। अब लेट्स टेक द टोटल। पेशेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा डेटा दिया है आपको, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। एज इन पेशेंस के साथ गलती होने का उतना स्कोप नहीं है, बट इफ यू ट्राई टू हरी अपना अननेसेसरीली, तो आप आपके लाइफ को तकलीफ में डालोगे। ठीक है। इवन आई एंडेड अप मेकिंग अ कपल ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज वो कहाँ पे 80 कहाँ पे 75, दैट वाज बिकमिंग अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी। ठीक है। सो दिस इज हाउ अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन शुड गो। ठीक है। मल्टीपल एडजस्टमेंट्स नहीं थे, बट दो सब्सिडियरी थे, तो इट स्टार्ट्स गेटिंग वेरी टैक्सिंग फॉर द माइंड। ठीक है। Yes, sir. ओके। नाउ द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज रीडू द क्वेश्चन इमीडिएटली। आई एंड द सेशन, यू मतलब मैं जब भी एंड करूंगा, यू डू द क्वेश्चन इमीडिएटली। आई विल सेंड द सोल्यूशन ऑन द ग्रुप, बट सोल्यूशन मत देखना, खुद से करो, जहां पे अटकोगे वहां पे रेफर इट अगेन। ठीक है। एनी डाउट्स इन व्हाट वी हैव डन टुडे? No, sir. No. And how many of you, or honestly बताना, how many of you have seen the recordings of consolidated balance sheet, P&L, बाकी का सब, interpretation and all of that on the LMS? इंटरप्रिटेशन Sir. का सब भी चल रहा है, बाकी कंसोलिडेशन देख लिया। सारे क्वेश्चंस देख लिए? उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है। महक, सर इंटरप्रिटेशन का देखा है, कंसोलिडेशन का बाकी है मेरा देखना। कंसोलिडेशन का देख लिया है? नो सर, कंसोलिडेशन का दो तीन बाकी है मेरा देखना। ओके। कैन यू ऑल डू वन थिंग? कैन यू रीडू दोज क्वेश्चंस? यस सर। Yes. है ना? रीडूइंग दोज क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है। Okay. यस, अनीशा, यस you सर। टेल मी टेल मी।